Assalamualaikum. Hello everyone. This is Muhammad Abdul Rahman from Park Pure Line. First of all, I would like to introduce Park Pure Line. Park Pure Line is a modern and innovative concept of food quality and safety solutions. We are working in different domains like food safety and halal. Under these domains, we are working on different projects. The projects which we are currently running in collaboration with the different public and private sector organizations are food safety awareness sessions, technical trainings, workshops, and seminars. Also, we offer our advisory and R&D facilities to food industry as well. Other than that, we are offering our e-digest or e-newsletter uh, for different publications of students and researchers in the fields of food science and technology. So all these projects are run in collaboration with our strategic partners. These are from those are from food industry and academia as well. So this was the little introduction about Park Pure Line. Now we will talk about our today's training, which is prerequisite programs building your HACCP foundation. We will discuss in detail in this training about the introduction of HACCP, introduction to prerequisite programs, what are prerequisite programs, and why they are focused in food industry while implementing HACCP program. Then prerequisite programs for HACCP that are basic necessities to build a HACCP foundation. And other than that, we will also talk about operational PRPs like OPRPs for HACCP. So first of all, we will learn about HACCP. What is HACCP? Why the need for HACCP arises? Basically, when we talk about food safety, then definitely we have to work or we have to adopt a specialized or a mechanized guidelines for implementing that food safety. So as far as that guidelines are concerned, we should follow some rules and regulations to adopt these type of food safety guidelines. So basically, the burden of food-borne diseases that are directly concerned with the human or public health problems that basically arises the need for implementing a food safety assurance program. Along with that, when we talk about the new technologies and processing methods for extending the shelf life of food items or preserving them for longer period of times, then definitely we have to follow some specific guidelines concerning the food safety assurance of that food items. So along with that, consumers on their part have increased awareness about their health concerns. So definitely there arises a need to implement some uh, food safety assurance methods. So in that concern, we use HACCP approach to incorporate a food safety assurance mechanism. As far as the concerns regarding the HACCP implementation, definitely in today's era, the need for industrialization and mass production has been arises due to urbanization and changing lifestyles and increased tourism and international trade between the countries. So these are the basic factors which arise the need for mechanizing the food safety through a mechanized system. When we talk about HACCP, HACCP stands for Hazard Analysis and Critical Control Point. Uh, Generally speaking, historically, the HACCP has been developed under the set of guidelines provided by the National Aeronautics and Space Administration missions. When in 1960s they sent their astronauts, then there were arised
uh, basic need to develop a wholesome and safe food for them for that space project. So different set of guidelines were compiled to make that food safe and wholesome for those people. So basic theme of that guidelines was to prepare a zero defect food. According to that zero defect food program, the basic set of guidelines were adopted to increase the shelf life of that food product. So the HACCP concept was taken basically from that project. HACCP is basically based on identifying the potential food safety problems that has been arise during the processing or production of that specific food item, during the processing of that product. When we talk about the shelf life or food safety concerns of that food product, then definitely we have to adopt some mechanized food safety guidelines to prevent microbes or different kinds of hazards like biological, physical, or chemical uh, that may arise during or before or after its processing. So definitely we have to adopt food safety guidelines under a mechanized systematic way. The important concept of HACCP is also the record keeping and documentation of HACCP, all steps that we comply to ensure the food safety. HACCP is a farm to fork approach. That means assurance throughout the food chain. When we talk about food chain, definitely food chain starts from the primary farming till final processing or validation or packing or boxing or transportation processes. So the assurance of food safety throughout all these steps is included in the HACCP. So we have to assure food safety concerns throughout the food chain, not a single step, just like you may say processing or boxing or packaging or just like the shipment. Not at all. However, we have to ensure the all the food safety guidelines for assurance towards the HACCP plan throughout the food chain. This is the basic concept of HACCP. So when we talk about the practical implementation of HACCP, then definitely there arises some concerns or there are some prerequisites that we have to follow or that we have to implement in that system that we call prerequisite programs or in short PRPs. So PRPs act as the foundation of HACCP system. The stronger a facility's foundation, the stronger its food safety plan. The PRPs provide the basic environmental and operating conditions necessary to produce safe and wholesome food. ओके, अब अगर हम बात कर रहे हैं हैसअप सिस्टम में पीआरपी की इम्प्लीमेंटेशन की और इनको किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है, तो इसमें ये है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन पीआरपीज टू असिस्ट controlling the likelihood of hazards through the work environment, controlling biological, physical and chemical contamination. तो अल्टीमेट इसका कंसर्न किस चीज़ के साथ है, फूड सेफ्टी के साथ. तो फूड सेफ्टी रिस्क बेसिकली तो जनरेट होता है बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल कंटेमिनेशन के साथ. तो यही हैसअप की एक बेस है. तो इसके अलावा हम पीआरपीज को मतलब जो इसकी दो टाइप्स हैं जिसमें सिंपल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स और एक पीआरपीज हैं जो डील करती हैं ऑपरेशंस के साथ, उनको हम ओपीआरपीज बोलते हैं, लाइक ऑपरेशनल पीआरपीज. So when we utilize PRPs properly, they keep several factors from becoming severe issues in your facility that could eventually impact food safety. Historically, failures of PRPs in sanitation and labeling areas cause significant foodborne illness outbreaks and product recall. तो जहाँ पे PRPs और OPRPs प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होंगी, डेफिनेटली हमें फिर या तो मतलब जो फूड बॉर्न
इलनेस आउटब्रेक्स उनका उनका सामना करना पड़ेगा, मतलब हमारी प्रोडक्ट स्पॉइल हो सकती है, फूड सेफ्टी के कंसर्न्स जनरेट होंगे, या उसके अलावा फिर हमें प्रोडक्ट रिकॉल या प्रोडक्ट रीवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। रिकॉल से पहले प्रोडक्ट रीवर्क होता है, देन अगर प्रोडक्ट हमारी मार्केट में प्रॉपरली मतलब उसका अच्छा रिस्पांस नहीं है तो डेफिनेटली हमें फिर प्रोडक्ट रिकॉल की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, सो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करते हैं पीआरपीज के लिए। लाइक जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें टाइप ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग, किस टाइप का फूड तैयार किया जा रहा है प्रोसेसिंग में, प्लांट की लेआउट कैसी है, और रिस्क एनालिसिस। ये 3 फैक्टर्स हैं जिस बेस पे हम पीआरपीज को सेट करते हैं, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करते हैं। तो सभी को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे पीआरपीज को। लाइक पीआरपीज रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो सकती हैं, इनपुट्स जो भी इंट्रोड्यूस करते हैं फूड प्रोसेसिंग में उनसे रिलेटेड हो सकती है, पैकेजिंग से रिलेटेड हो सकती है, प्रोसेसिंग एड्स, फैसिलिटी जो भी हमारी फैसिलिटी है जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकती है। उसके अलावा जो कंप्लेंट मैनेजमेंट है, एलर्जन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है, माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग है, फिर इसके अलावा प्लांट का लेआउट, डिज़ाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग, फिर इंग्रेडिएंट से रिलेटेड हो सकती है, इंग्रेडिएंट्स की ट्रेसेबिलिटी से रिलेटेड हो सकती है, या इसके अलावा हमारा जो भी ओवरऑल जो नेसेसिटीज़ हैं जिनसे हम हैशेट की फर्दर इम्प्लीमेंटेशन जिन चीज़ों पर बेस करती है उन सभी से रिलेटेड पीआरपी हो सकती हैं, और उन्हीं में से फर्दर हम ओपीआरपीज को अखज़ करते हैं जो कि डायरेक्टली ऑपरेशंस के साथ डील करती हैं। ओके, तो एफडीए जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उनके मैंडेट के मुताबिक मुख्य पीआरपी जो हैं उनको एफडीए की रिकमेंडेशंस के मुताबिक मुख्तलिफ पीआरपीज को हमने मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ जो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग स्टेजेस हैं उनके अंदर हमने इम्प्लीमेंट करना है। लाइक कौन सी पीआरपीज हैं, एक मतलब लिस्ट तैयार की जाती है प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग से रिलेटेड, उन्हीं पीआरपी से रिलेटेड फर्दर फिर जो एक पब्लिकली अवेलेबल स्टैंडर्ड जिसको हम पास 220 बोलते हैं, पास 220 के अंदर बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें हर चीज़ के मतलब स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। लाइक अगर हम जनरली बात करें कि रॉ मटेरियल की रिसीविंग के लिए क्या पीआरपी इंट्रोड्यूस करानी है, या इसके अलावा प्रोडक्शन में मतलब जो इक्विपमेंट यूज़ होगा, जो प्रोसेसिंग मशीनरी यूज़ होगी, या प्रोसेसिंग में जो पानी इस्तेमाल होगा, जो एयर इस्तेमाल होगी, फॉर एग्जांपल बॉयलर है उससे स्टीम जो प्रोड्यूस होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, पेस्ट कंट्रोल एक्टिविटी कैसे करनी है, माइक्रोबायोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं वो कैसे कैरी आउट करनी है, सभी के मतलब पब्लिकली अवेलेबल स्टैंडर्ड 220 जिसको हम पास 220 बोलते हैं उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस और क्लियर गाइडलाइंस मौजूद हैं। सो एफडीए के रूल्स के तहत हम पीएएस 220 को फॉलो करते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले पीआरपी जो है वो इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड लोकेशन है कि जहाँ पे सेटअप इंस्टॉल करना है सबसे पहले उसका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट देखना है कि इन्वायरमेंट कैसा है जहाँ पे हम वो कल का इंडस्ट्री इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या प्रोडक्शन प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डेयरी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि उसका सराउंडिंग एरिया कैसा है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा है, आया वहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है सारा सिस्टम, या कोई उसके इर्द गिर्द में कोई विसिनिटी में कोई ऐसी इंडस्ट्री तो नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल पोल्ट्री इंडस्ट्री तो नहीं है जहाँ पे साल्मोनेला का बहुत इशू हो सकता है, इकोलाई का बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है इस चीज़ में। तो प्रॉपरली कंपैटिबिलिटी को देखा जाता है कि कोई ऐसा हार्मफुल कोई सब्सटेंसेस जनरेट तो नहीं हो रहे किसी और फैक्ट्री से, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री उससे उस विसिनिटी में तो नहीं है जहाँ से कुछ ऐसा जो है ना टॉक्सिसिटी इन्वायरमेंट के अंदर रिड्यूस हो सकती है जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में
इफेक्ट करे। तो इस चीज़ को हम इन्वायरमेंट और लोकेशन के हिसाब से कंसिडर करते हैं। देन कंस्ट्रक्शन एंड लेआउट ऑफ बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री का सेटअप क्या होगा, बिल्डिंग कैसी होगी, डिज़ाइन और लेआउट कैसा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन सभी के बारे में टू द पॉइंट स्पेसिफिक गाइडलाइंस पास 220 के अंदर मौजूद हैं। पब्लिकली अवेलेबल स्टैंडर्ड 220 जिसको हम बोलते हैं। सो अगर हम जनरलाइज वे में बात करें तो फॉर एग्जांपल डेयरी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। इसमें देखा जाता है कि प्रोसेसिंग के लिए हमें फॉर एग्जांपल फ्लोर कैसा होना है, ठीक है, उसकी जो दीवारें हैं वो कैसी होनी है, छत कैसी होनी है, दीवारों जहाँ पे दीवारें आपस में जो कॉर्नर्ड एरियाज हैं वो कैसे होने हैं। आमतौर पे तो ये कंसिडर किया जाता है और रिकमेंडेशन भी यही है कि दीवारें जहाँ पे आपस में मतलब जॉइंट है, मतलब जहाँ से दो दीवारें आपस में जोड़ रही हैं वो कॉर्नर्ड एरिया नहीं होना चाहिए बल्कि राउंड शेप पे एजेस होने चाहिए, ताकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई लाइक कोई ऐसी जो ना इन्वेजन ना हो सके, लाइक कोई इंसेक्ट ना छुप सके, या अगर पानी का काम ज़्यादा हो रहा है प्रोसेसिंग हाल में तो यहाँ पे पानी की वजह से कोई फंगस इस तरह की ग्रोथ ना हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके में कंसिडर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा फ्लोरिंग स्मूथ होनी चाहिए, कोई जो ना वो कोई दराड़ें वगैरह नहीं होनी चाहिए, फर्श टूटा नहीं होना चाहिए, फर्श स्मूथ हो। और इसी तरीके से जो रूफ़ है उसके बारे में गाइडलाइंस हैं कि रूफ़ बिल्कुल स्मूथ हो, ठीक है। और ख़ास तौर पे एक चीज़ जो कंसिडर करने वाली इसमें ये है कि दीवारों पे पेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइलिंग हो या मार्बल हो, ठीक है, कोई भी ऐसा केमिकल पेंट ना हो जिससे प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। इसी तरीके से जो बिल्डिंग का लेआउट है वो छतें बाहर से मतलब इस तरीके से हों कि फॉर एग्जांपल बारिश वगैरह आती है तो उनका पानी इजीली ड्रेन्ड हो। फ्लोर जो हैं, फ्लोर और बेंचेस जो है ना वो सेल्फ ड्रेनिंग होनी चाहिए। जब हम इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग प्रोग्राम की बात करते हैं, लाइक हम उसकी लेआउट और जो उसका लोकेशन है उस सेंस में बात करते हैं, तो इसमें ख़ास तौर पे 3 ऑर्गेनिज़म जिनको हम कंसिडर करते हैं, लाइक इकोलाई है, साल्मोनेला और लिस्टेरिया। ये विद स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव को अगर डेयरी इंडस्ट्री बात करें तो इसमें भी ये चीज़ें कंसिडर करने की ज़रूरत है। हाउएवर जनरलाइज्ड वे में भी हम इनको कंसिडर कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोसेसिंग। सो जहाँ पे भी सेटअप स्टैब्लिश करना है वहाँ पे उसके इर्द गिर्द में एक हद तक मतलब वहाँ पे लाइक पोल्ट्री प्रोसेसिंग ना हो या इकोलाई, साल्मोनेला और लिस्टेरिया का इशू ना हो। इसके लिए हमें स्वैब टेस्टिंग वगैरह करवाई जा सकती है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस करवाया जा सकता है। लेआउट ऑफ प्रेमिसेस एंड वर्क स्पेस, जिस विसिनिटी में काम करना है, लेबर काम करेगी, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एक तो ये है कि घुटन वाली स्पेस नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए, मतलब एडिक्वेट स्पेस हो जिसमें जो आप लेबर है वो इजीली मूव कर सके। कोई ऐसा बैरियर, कोई ऐसा पार्टीशन नहीं होना चाहिए जिसमें मूवमेंट में कोई हर्डल क्रिएट हो। या इसके अलावा जो प्रोसेसिंग हॉल है, जो प्रोडक्शन हॉल है, या जो उससे कंसर्न जो वर्किंग एरियाज हैं, दे शुड बी स्पेशियस। देन जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, लेबॉर्ट्रीज को इजीली एक्सेस किया जा सके, इन सारी सिस्टम्स के बारे में भी ये सिस्टम गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। देन बात होती है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिटिंग्स, लाइक मशीनरी और जो पाइपिंग सिस्टम है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे क्लोज सर्कुलेशन में प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ पर पाइपिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, फिटिंग्स कैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट जो उनका ग्रेड है, जो मशीनरी का जो इक्विपमेंट का ग्रेड है दैट शुड बी फूड ग्रेड, जिसको हम 316 बोलते हैं। इसमें दो ग्रेड होते हैं, 304 और 316। सो 316 इज दी रिकमेंडेड फूड ग्रेड फॉर फूड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। अब डेयरी इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि कोई भी मेटेलिक
जो पाइपिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेटालिक से फिर एरोजन का इशू होगा। एरोजन तो डेफिनेटली फूड सेफ्टी कंसर्न जो है ना वो तो होंगे। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पाइपिंग सिस्टम जो है स्टेनलेस स्टील का हो, और स्टेनलेस स्टील में भी स्पेसिफिकली 316 ग्रेड। देन जो इक्विपमेंट है जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हो रही है उसका भी ग्रेड जो है ना वो कंसिडरेबल है। उसके लिए भी 316 ग्रेड ही रिकमेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक जूस इंडस्ट्री है, अब जूस फॉर्मुलेशन में, रेसिपी फॉर्मुलेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ chemicals like citric acid, like other substances are utilized. So in that scenario or with that concern, the equipment that is being used for processing or production of that food product should be considered the food grade. ओके, इसके बाद इक्विपमेंट लैब फैसिलिटीज़। अब लैब फैसिलिटीज़ में दो चीज़ें आती हैं। जो हैसअप सिस्टम है, क्योंकि ये हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन अंडर ISO 22000 होती है, इसकी एक कंपल्शन है। मतलब जब भी ISO 22000 की इम्प्लीमेंट करना, डेफिनेटली हैसअप शुड बी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड। सो उस तनाज़र में अगर हम बात करें तो फैसिलिटी के ऊपर जो आपका प्रोडक्शन सेटअप है वहाँ पे जो है ना लेबॉर्ट्री का होना ज़रूरी है। लास्ट टाइम भी इसकी डिस्कशन हुई थी कि लेबॉर्ट्री का होना इसलिए ज़रूरी है कि जो ISO का सिस्टम है वो ये कहता है कि ISO 17025 एक्रेडिटेड लैब होनी चाहिए। हाउएवर हैसअप के लिए खास तौर पे ये कंपल्शन नहीं है। हाउएवर यहाँ पे आपकी फैसिलिटी के ऊपर लेबॉर्ट्री का होना ज़रूरी है, जिसमें तमाम पॉसिबल टेस्टिंग जो भी रेलिवेंट टेस्टिंग है लाइक माइक्रोबायोलॉजिकल है, या इसके अलावा जो R&D स्टडीज़ हैं वो होनी चाहिए। या इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी लेबॉर्ट्री से लैब एनालिसिस और टेस्टिंग की जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा किया जा सकता है। ओके, इसके बाद बात आती है स्पेसिफिकली थर्मामीटर की। तो लाइक थर्मामीटर की कैसे मेंटेनेंस करनी है और कैसे उसकी जो है कैलिब्रेशन वगैरह करनी है। उसमें जो मेन चीज़ें देखने वाली हैं कि जब भी थर्मामीटर की कैलिब्रेशन करनी है, उसमें उसकी जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग है वो ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू डेट, टाइम, थर्मामीटर नंबर, रेफरेंस टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर, फिर उसकी एडजस्टमेंट्स हैं, और with the marking of initials of that supervisor or quality control officer। तो इस तरीके से थर्मामीटर की कैलिब्रेशन को नोट डाउन करना है। फिर केमिकल कंट्रोल के लिए मुख्य केमिकल जो इंडस्ट्री के अंदर, जो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, या लेबॉर्ट्री की जो वर्किंग के लिए जो रिक्वायर्ड हैं उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। खास तौर पे जो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में केमिकल यूज़ होते हैं दैट शुड बी फूड ग्रेड। और अगर हम ज़्यादा कंसर्न है इस बारे में तो डेफिनेटली दो केमिकल शुड बी ऑफ हलाल। जब हम हलाल की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो फिर हलाल की सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हाउएवर जनरली स्पीकिंग हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस भी कंपनी से रॉ मटेरियल्स केमिकल परचेज हो रहे हैं तो उसकी हैसअप की जो कंप्लायंस है वो होना ज़रूरी है। इसी तरीके से हर केमिकल के साथ एक स्पेसिफिक MSDS होती है, जिसको हम सेफ्टी डाटा शीट बोलते हैं। तो सेफ्टी डाटा शीट के अंदर तमाम किस्म की इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस मौजूद होती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमने उन केमिकल्स को डील करना है, केमिकल्स को कैसे उनके साथ हैंडल करना है, किस टेम्परेचर पे उनको रखना है, आइदर वो रेफ्रिजरेशन के अंदर रखना है उनको, या उसके अलावा उनको एक आम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है। सो जो जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, केमिकल्स के साथ डील कैसे करना है, उनको किस केमिकल को किस केमिकल के साथ हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और तो इन सभी केस में उसकी सेफ्टी डाटा शीट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की डाइल्यूशन की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब भी डाइल्यूट किया जाता है सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसके अंदर पानी डाला जाता है, ना कि पानी को डाल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालें, तो वहाँ पे उसके सेफ्टी कंसर्न्स जो भी हेल्थ हैजर्ड्स हैं वो राइज हो सकते हैं। सो इस तरह की जो है ना सारी गाइडलाइंस की सेफ्टी डाटा शीट के अंदर मौजूद होती हैं, जो भी आप केमिकल वगैरह परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करना है। इसके बाद बात आती है
पेस्ट कंट्रोल की। पेस्ट कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक पीआरपी है जो कि इनडायरेक्ट वे में कंसर्न है विद फूड सेफ्टी। तो पेस्ट कंट्रोल में बुनियादी तौर पे जो एक तो सिस्टम है जिसको हम आईपीएम बोलते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो आईपीएम सिस्टम जो है ना वो ये कहता है कि कोई भी पेस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास सिस्टम जो हैं उनको हम एक मतलब एक एजुकेटेड वे में हम उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं टू कंट्रोल दैट स्पेसिफिक इंसेक्ट और पेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर रैट्स का इशू हो तो रैट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। लाइक रैट्स को हम रैट बेट्स इंट्रोड्यूस करवा के उनको भी कैप्चर कर सकते हैं, या रैट्स के लिए हम मुख्तलिफ केमिकल मुख्तलिफ पॉइजन भी यूज़ कर सकते हैं। रैट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मतलब जो हमारी विसिनिटी है, जो प्रोडक्शन सेटअप है, प्रोडक्शन हॉल है, उसकी जनरल मेंटेनेंस और मैनेजमेंट करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि रैट्स को अपने प्रोडक्शन सेटअप में आने से रोका जा सके। सो देर आर डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल रैट। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि कौन सा मेथड बेस्ट है और कौन सा मेथड इस सिस्टम की इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है। या फॉर एग्जांपल बाज़ का हम स्प्रे के साथ रैट को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसकी बजाय हम प्रेफर करेंगे रैट को बेट्स के साथ कैप्चर कर लें। तो इस चीज़ को हमने डिसाइड करना है कि कौन सा सिस्टम, कौन सा मेथड यूटिलाइज करना है फॉर कंट्रोलिंग दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेस्ट। या बाद का हमें मुख्तलिफ सिस्टम को एट द सेम टाइम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टू कंट्रोल दैट स्पेसिफिक पेस्ट। तो इसको हम आईपीएम में कंसिडर करते हैं। तो आईपीएम को इम्प्लीमेंट करने से पहले आईपीएम की मैपिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, आईपीएम के मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, उनको एज इट इज इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसी तरीके से जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, उनका इशू है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम फ्यूमिगेशन करवा सकते हैं, या फ्यूमिगेशन के अलावा हम इंसेक्टोक्यूटर या यूवी लाइट इंसेक्टोक्यूटर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। या इसके अलावा जो हमारी प्रिकॉशनरी मेजर है उसमें हम फिर देखते हैं कि कोई भी ऐसा गैप ना हो। लाइक हम उसको पहले गैप एनालिसिस में लेके आते हैं, गैप एनालिसिस में देखा जाता है कोई भी ऐसा गैप ना हो जिसमें कोई एंट्री पॉइंट्स हैं इंसेक्ट्स के या मॉस्किटोज के या फ्लाइज के, वहाँ से उनको अंदर आने से रोका जा सके प्रोडक्शन हॉल के लिए। तो मुख्तलिफ मेथड हैं, सभी को एट द सेम टाइम भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है या सभी को इंडिविजुअली भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, सब्जेक्ट टू दी कंसिडरेशन और दी ऑब्जेक्ट वी आर डीलिंग विद। तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर एग्जांपल अगर हम इंसेक्टोक्यूटर की बात करें तो इंसेक्टोक्यूटर को कभी प्रोडक्शन हॉल के अंदर हैंड नहीं करना, बल्कि जो भी फ्लाइज या मॉस्किटोज के एंट्री पॉइंट्स हैं, लाइक डोर्स हैं, डोर के सामने अपने 3 से 4 फुट के फासले से ऊपर से छत से उसको 2 से 3 फुट दरवाजे के लेवल पे हैंग करना, ताकि कोई भी फ्लाइज अंदर एंटर हों तो वो इजीली वहाँ से कैप्चर हो सकें। या इसके अलावा एयर कर्टन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डोर्स के अंदर, जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ से वो स्क्रीनिंग हो सकती है इजीली। इसके अलावा फ्लाइज के लिए फ्यूमिगेशन भी यूज़ होती है। और अगर फ्यूमिगेशन में क्योंकि मुख्तलिफ स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो इसमें फिर ज़्यादा कंसर्न होना पड़ेगा हमें कि कौन सी स्प्रे यूज़ की जाती है, कौन सा मतलब मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, स्प्रे को कैसे करना है, कौन बंदा करेगा। उसके लिए पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स होते हैं जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस के तहत जो फ्यूमिगेशन करते हैं, उनको फ्यूमिगेशन का तरीका आना चाहिए, ठीक है। और वो क्वालिफाइड पीसीओज हैं जिनको एटलीस्ट मेथड पता है कि स्प्रे को कैसे करना है, मतलब हवा में नहीं करना है या नीचे करना है, वट एवर जो बीच का मैकेनिज्म है। उसके लिए फिर हमें सेफ्टी डाटा शीट एसडीएस को कंसिडर करने की ज़रूरत है, जिसमें तमाम जो भी उस पेस्टिसाइड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दी गई उनको हम फॉलो करें। सो जनरली स्पीकिंग जो ईपीए है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन इस बारे में इम्प्लीमेंटेड हैं, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, फॉरेन मटेरियल कंट्रोल में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो भी फॉरेन मैटर्स हैं, लाइक कोई मैग्नेट्स हैं, कोई बोन पीसेस हैं, या
या भी जो लाइक वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है या अदर फॉरेन मटेरियल, उसको प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में कैसे कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ साल्ट इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग की, तो साल्ट को प्रोसेस करने के दौरान जो हम ग्राइंडर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, साल्ट को जो पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, पाउडर फॉर्म में करने के बाद साल्ट को हम फर्दर मिक्सिंग में लेके जाते हैं। तो मिक्सिंग से पहले वहाँ पे मैग्नेट्स या मेटल डिटेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, ताकि मिक्सिंग में एक तो इक्विपमेंट की जो वियर एंड टीयर है उसको भी हम जो ना वहाँ पे डिटेक्ट कर सकें कि कोई मेटालिक किसी अंदर तो नहीं आ रहे, या उसके अलावा पीछे से जो साल्ट के अंदर भी ऐसी जो फॉरेन मैटर इंट्रोड्यूस हो गया किसी वजह से, उसको भी वहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह हम बाकी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वहाँ पे भी मैटर डिटेक्टर्स या मुख्तलिफ किस्म के जो लाइक बाज़ का लाइट डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है, बाज़ का मेटल डिटेक्टर्स हैं, मैग्नेट्स हैं, स्क्रीन्स को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, ठीक है। सो ये सारी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, टैक्टिक्स हैं जिनसे हम फॉरेन मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। देन मुख्तलिफ किस्म की यूटिलिटीज़ हैं, लाइक एयर है, वाटर है, एनर्जी है, उसको कैसे, उसके लिए क्या जो गाइडलाइंस है, लाइक अगर एयर है, अगर हम स्टीम की बात करते हैं जो बॉयलर में प्रोड्यूस हो रही है, स्टीम की क्वालिटी, जो वाटर है जो हम प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में यूटिलाइज करेंगे, वाटर की क्वालिटी, वाटर शुड बी एटलीस्ट पोर्टेबल, पीने पीने के काबिल पानी होना चाहिए, वो उसको हम प्रोडक्शन में यूटिलाइज करेंगे। बाद के बाद वॉशिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बाद के बाद रेसिपी की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो दोनों के लिए एटलीस्ट वाटर शुड बी पोर्टेबल। हाँ, अगर रेसिपी के लिए कुछ डेफिनेटली जो उसके पीडीएस हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, उनको भी कंसिडर करना चाहिए, जो कि जो भी जो एफडीए की गाइडलाइंस हैं जिसमें मिनिमम 150 और मैक्सिमम 500 तक की गुंजाइश है, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। उसमें डब्ल्यू और जो भी लीगल रेगुलेशन है, लाइक पंजाब फूड अथॉरिटी है या दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना ज़रूरी है। देन एयर क्वालिटी और वेंटिलेशन की बात करते हैं। एयर क्वालिटी के रिस्पेक्ट से हमने पहले भी बात की है कि दैट इन्वायरमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इकोलाई, लिस्टेरिया। तो इसी तरीके से जो वेंटिलेशन का क्राइटेरिया, उसमें भी एटलीस्ट सफोकेशन का सिस्टम, सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, ताकि जो भी वर्कर जो अगर काम कर रहे हैं उस विसिनिटी में जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको उनकी पर्सनल हेल्थ के लिए कोई इस तरह की कोई ओडर या डस्ट डर्ट या कोई इस तरह की मतलब इची इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए जो कि उनकी हेल्थ को डिस्टर्ब करे, या जो हम प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी मतलब क्वालिटी को जो डिस्टर्ब कर सके। लाइक स्मोक है, बाज़ का ऐसी जगहों पे स्मोक बिल्कुल अनवांटेड है, जहाँ पे कोई फूड मटेरियल जो मतलब स्मोक को कैच कर सकता है, जिसका ऑडर या फ्लेवर चेंज हो सकता है, इस केस में भी हमें उसको कंसिडर करना है। देन उसके बाद जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी लेवल कैसा है एनवायरनमेंट का, ह्यूमिडिटी शुड बी कंट्रोल्ड, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूटिलाइज की जा सकती हैं, तो इस चीज़ को भी कंसिडर करना है। आगे लाइटिंग की रिक्वायरमेंट है कि लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, लाइटिंग इंटेंसिटी, या इसके अलावा जो लाइटिंग फिक्सचर्स हैं, लाइक ट्यूब लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, एनर्जी सेवर्स हैं, या और लाइटिंग है, लाइटिंग असम्बलीज हैं, तो वो उनकी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस कैसी होनी चाहिए। लाइक एक बल्ब है, उसके ऊपर एक कवरिंग होना ज़रूरी है, उसके ऊपर एक जाली नुमा कवरिंग होना ज़रूरी है। लाइक बाद का वो टूट सकते हैं, अगर टूट के नीचे गिरें तो जो बल्ब के जो पीसेस हैं, जो ग्लास पीसेस हैं, वो हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो ना वो मतलब मिक्स ना हो सकें या उसको कंटेमिनेट ना कर सकें। या इसके अलावा जो जाली है उसके ऊपर जो ना उसकी सफाई वाला करना, लाइटिंग फिक्सर की सफाई वाला करना ज़रूरी होगी। फॉर एग्जांपल उसको इजीली उतार के वॉश किया जा सकता है, वॉशेबल है, तो इस तरह की कंसिडरेशन। आगे बात आती है वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट डिस्पोजल की। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है उसके लिए एटलीस्ट कवर्ड डस्टबिन आर नेसेसरी। फॉर एग्जांपल डस्टबिन एक तो सेल्फ ओपनिंग होनी चाहिए, मीन्स टू से कि पैडल ऑपरेटेड होनी चाहिए। जो भी वर्कर उसके अंदर कोई डस्टबिन के अंदर कोई जो वेस्ट वगैरह वो फेंकना चाहे, उसके लिए क्या है, वो पाँव के साथ उसको खोले
उसका कवर खुले, इसमें वो चीज़ जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह वो फेंक सकता है, रादर दैन कि ऐसा डस्टबिन हो जिसको हाथ से खोला जाए, दूसरे हाथ से उसको किसी भी चीज़ को अंदर कूड़ा करकट वगैरह को फेंका जाए, तो उससे क्या हो सकता है, क्रॉस कंटेमिनेशन का इशू जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक हैसब का PRP है, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम है, जिसको हम कंसिडर करें। तो इसके अलावा डस्टबिन को रखना कहाँ पे है, उनकी लोकेशन क्या होंगी, इसके लिए भी मैप डिज़ाइन होता है हर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एरिया में, किस जगह पे डस्टबिन होना चाहिए, या उसके अलावा जो एक मेन डस्टबिन है वो कहाँ पे होना है, उसकी मैनेजमेंट, उसकी सफाई सुथराई, उसकी सैनिटाइजेशन, उसकी क्लीनिंग वो कैसी होनी चाहिए, उसके लिए भी मैकेनिज्म मौजूद है। ओके, इसके बाद आती है बात ड्रेनेज सिस्टम की। जो प्रोडक्शन हॉल के अंदर जो भी ड्रेनेज और बेंचेज वगैरह हैं, उनको एक तो ये है कि ड्रेनेज सेल्फ ड्रेन्ड होना चाहिए, मतलब उनके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल पानी वगैरह जो है अगर गिराया जाए तो खुद ब खुद वो उसको ड्रेन आउट करें सीवेज के अंदर। ऐसा ना हो कि हम प्रेशर के साथ उसको फिर ड्रेन आउट करते फिरें। सो दैट इज़ अ बेसिक रिकमेंडेशन इन दिस पर्सपेक्टिव। इसके अलावा जो सीवरेज सिस्टम है दैट शुड बी क्लीन, उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि लाइक वहाँ से बाज़ पेस्ट वगैरह अंदर आ सकते हैं। तो ड्रेनेज के ऊपर एटलीस्ट जाली होनी चाहिए, और जाली का सुराख इतना हो कि मतलब इसको नॉर्मली कहते हैं कि पेंसिल के साइज़ के बराबर सुराख हो, ताकि वहाँ से कोई पेस्ट्स हैं, कोई रैट्स हैं, कोई कॉकरोचेज वगैरह हैं, वो अंदर ना आ सकें। फिर इस तरह ड्रेनेज की जो लोकेशन है वो भी ऐसी जगहों पे हों जहाँ पे फॉर एग्जांपल डेयरी इंडस्ट्री में अगर कंसिडर करें हम, तो वहाँ पे इजीली जो वेस्ट वाटर वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से ड्रेन आउट हो सके। इसके अलावा ड्रेनेज के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की ऐसे कवरिंग जालियों वाले होने चाहिए जिनको इजीली हम रिमूव करके उनकी प्रॉपर वॉशिंग कर सकें। देन इक्विपमेंट सुटेबिलिटी, क्लीनिंग एंड मैनेजमेंट। जो भी इक्विपमेंट्स हैं अंडर कंसिडरेशन लाइक मुख्तलिफ प्रोडक्शन प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, उनकी जनरल मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए क्वालिफाइड स्टाफ हो, टेक्निकल पर्सनल्स हों और रेलिवेंट इंजीनियर्स मौजूद होने चाहिए जो उनकी मेंटेनेंस वगैरह रूटीन में कर सकें। लाइक होमोजेनाइजर्स हो सकते हैं, पास्चराइजर्स हो सकते हैं, यूएसपी इक्विपमेंट हो सकता है, या जनरल जो पाइपिंग असेंबली है ऑटोमेटिक प्रोडक्शन के केस में, तो उसकी कैसे मैनेजमेंट करनी है, मेंटेनेंस करनी है। जनरली स्पीकिंग एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें प्रोडक्ट जो है वो कन्वे हो रही है, लाइक डेयरी इंडस्ट्री है या जूस इंडस्ट्री की बात करें, तो उसमें जितना भी पाइपिंग सिस्टम है उनके ब्लाइंड एंड्स नहीं होने चाहिए, मतलब एंड्स कोई भी ब्लाइंड नहीं हो, बल्कि एंड्स आगे से ओपनिंग हो ताकि प्रोडक्ट को वहाँ से एग्जिट किया जा सके, या उसके जो 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 आप कह लें कि पाइप्स राउंड शेप में होने चाहिए ताकि प्रोडक्ट को आगे अगली लाइन में कन्वे करना इजीली हो, रादर दैन के एक पाइपिंग सिस्टम है उसके एजेस हैं, तो प्रोडक्ट एंड मुमकिन है कि एजेस में फंस सकती है, वहाँ पे कोई कंटेमिनेशन का इशू हो सकता है। तो इन चीज़ों को कंसिडर करना है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके ग्रेड की भी यहाँ पे बात होती है कि फूड ग्रेड होना चाहिए और उसकी जो प्रॉपर मेंटेनेंस, क्लीनिंग और सफाई सुथराई ईजी हो। मैनेजमेंट ऑफ परचेज मटेरियल की बात आ रही है, लाइक रॉ मटेरियल है, मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ जो भी रॉ मटेरियल हो सकते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उसकी परचेजिंग कैसे करनी है। परचेजिंग के लिए परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है हर इंडस्ट्री में, उसमें क्वालिफाइड परचेज ऑफिसर्स होते हैं जिनको सारी चीज़ों का इल्म होता है कि कौन सा मटेरियल किस तरीके से परचेज करना है, किस मार्केट से फ्रेशली परचेज करना है, और ये सारा एक मैकेनाइज्ड सिस्टम है। तो वो अपनी अपनी मतलब कैपेसिटी में रहते हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इनको मैनेज करेंगे। एटलीस्ट जहाँ से मटेरियल परचेज करना है उसका सप्लायर हमें मतलब ऑथेंटिकेटेड हो, हमें पता हो कौन सा सप्लायर है, किस सोर्स से वो इस प्रोडक्ट को लेके आ रहा है, कैसे उसकी जो इनिशियल जो प्रेपरेशन है वो हुई है। ठीक है, कोई मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं लाइक केमिकल्स हैं या कलरेंट्स हैं या अदर एजेंट्स हैं दैट आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट,
उनको प्रॉपरली एक तो पैकिंग फॉर्म में लेना है, मतलब प्रॉपर उसकी पैकिंग हो। अगर छोटी पैकिंग है उनको कंसिडर करना है, अगर बड़ी पैकिंग है उसमें भी मुख्तलिफ जो गाइडलाइंस हैं, पैकिंग इंस्ट्रक्शन हैं, जिनमें NLEA का एक स्टैंडर्ड है, न्यूट्रिशनल लेबलिंग है, एजुकेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन ये हैं कि दैट मटेरियल शुड बी इन फूड ग्रेड पैकिंग। उसके बाद उसकी पैकिंग फटी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पैकिंग के ऊपर उसका क्लियरली नाम मेंशन हो, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स मेंशन हो, प्रोडक्ट की रेसिपी क्या है, रॉ मटेरियल की रेसिपी क्या है वो मेंशन हो। उसके अलावा जो इंडस्ट्री या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रिपेयर कर रही है उसका एड्रेस मौजूद होना चाहिए, और उसकी जो यूज़ करने की गाइडलाइंस हैं वो उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। तो इन सभी पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ज़रूरी है। फिर इसी तरह उसके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, या बेस्ट बिफोर डेट है, या एक्सपायरी डेट है, उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए ताकि कोई भी पैकिंग जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपायर्ड फॉर्म में यूज़ ना हो। ओके, उनकी रिसीविंग के लिए क्या है, रिसीविंग में मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन को, SOPs को फॉलो करना ज़रूरी है। लाइक इन हाउस उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे रिसीव करना है। आगे रिसीविंग एजेंट होता है, रिसीविंग ऑफिसर होता है, जो लाइक कोई परचेज मटेरियल है उसकी वो स्लिप वगैरह देखेगा, उसकी रसीद देखेगा, उसके अकॉर्डिंगली देखेगा उसके कंटेंट्स क्या हैं, जो कंटेंट्स दिखाए गए हैं, जो उसके ऊपर लिखे हैं, उनको वो वेरीफाई करके उनको रिसीव करेगा। इसी तरह उसकी फर्दर स्टैकिंग कैसे, उसकी स्टोरेज और कैसे उसको वेयर हाउस में रखना है। लाइक मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ जो है ना वो मटेरियल्स हो सकते हैं। इसी तरह उसमें पैकिंग भी हमारी शामिल हो सकती है। तो उनको वेयर हाउसिंग में और स्टोरेज में कैसे रखना है इसके लिए भी बाकायदा SOPs हैं। सो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग के लिए जो एक बेसिक मेथड है उसको हम FIFO या FIFO बोलते हैं, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके लिए प्रॉपर स्टैकिंग को करना ज़रूरी है। देन जो FIFO से रिलेटेड मुख्तलिफ जगहों पे उसको कैसे स्टैक करना है, कैसे उनको स्टोर करना है, शेल्फ के ऊपर कैसे स्टोर करना है, उसमें बुनियादी चीज़ है उसकी शेल्फ लाइफ ऑफ एक्सपायरी डेट को चेक करना है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मटेरियल जो वेयर हाउस में जिसको हम स्टोर करना चाह रहे हैं उसकी वो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए, या उसकी जो नियर टू एक्सपायरी डेट है उसको कंसिडर करना ज़रूरी है। तो जो नियर टू एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है ना जो मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे ऐसे स्टैक्स ऐसे वे में उसको स्टैकिंग करनी ताकि वो पहले यूटिलाइज हो सकें, रादर दैन कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसकी लॉन्गर एक्सपायरी है उसको पिछली शेल्फ की पिछली जगह पे रखना, ताकि उसको उसकी एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली ही यूटिलाइज किया जा सके। ऐसा ना हो कि मतलब जिसकी कम एक्सपायरी है जिस प्रोडक्ट की उसको हम शेल्फ की पिछली साइड पे रखते हैं स्टोरेज में, स्टैकिंग में, जो ज़्यादा एक्सपायरी वाली प्रोडक्ट है वो आगे रखी हुई है, वो पहले यूटिलाइज हो गई है, लेकिन बाद का कुछ चीज़ें पड़ी पड़ी एक्सपायर हो गई हैं। तो इन सभी चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी है। दैन इसके अलावा जो वेयर हाउसिंग और स्टोरेज में जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको भी देखना ज़रूरी है। लाइक उसकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट में कोई ऐसी स्मेल, कोई ऑडर, कोई स्मोक तो नहीं है जो उस प्रोडक्ट को ख़राब कर सकती है। या हर प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है, रॉ इंग्रेडिएंट है या केमिकल है, उसकी पैकेजिंग और स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। बाज़ का कुछ चीज़ों को फ्रीज़र में रखना ज़रूरी होता है, लाइक चिलिंग टेम्परेचर पे, बाज़ का चीज़ों को फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखना ज़रूरी होता है। लाइक मीट है, बीफ रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनको हम जनरली आम स्टोरेज पे नहीं रख सकते। उनको बाद में जो मीट या मीट प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्रीजिंग में रखना होता है -18, ठीक है। जो हमारी जनरलाइज आइटम्स हैं उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना ज़रूरी होता है। या इसके अलावा जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको एटलीस्ट दे शुड बी मेंटेन एट चिलिंग टेम्परेचर। रॉ मिल्क है उसको चिलिंग में रखना है। जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं बाद का तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको चिलिंग पर रखना, बाद का तो उनको फ्रीजिंग में रखना होता है। या इसके अलावा उनको बाद का जनरल
जो रूम टेम्परेचर उसको भी रखा जा सकता है. सो सब्जेक्ट टू दैट specific product or owing to its labeling or uh, keeping in housekeeping requirements, we have to manage that product accordingly. इसके अलावा कुछ नॉन फूड आइटम्स होती हैं, लाइक हमारे सैनिटाइजर्स हैं, लाइक अदर केमिकल्स हैं, हैंड वॉशिंग सोप हो सकते हैं. ठीक है. सो जितने भी ऐसे नॉन फूड आइटम्स हैं उनको उनके अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ क्लीनिंग एजेंट्स हो सकते हैं, उनको उनके अकॉर्डिंगली ही मैनेज करना है. उनकी जो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शन हैं, उनको उनके अकॉर्डिंगली ही रखना है. देन ट्रांसपोर्टेशन और जो है ना इसकी जो डिलीवरी की बात आ जाती है. ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी है. जनरल इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो इन्वायरमेंट है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में जिस कैबन में प्रोडक्ट को डिलीवर किया जा रहा है वो कैबन दैट शुड बी क्लीन and should be compatible with that प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल अगर हम मीट की डिलीवरी कर रहे हैं तो मीट को हमने मतलब क्लोज जो है वो कैरियर्स होने चाहिए और वो टेम्परेचर कंट्रोल होने चाहिए. इसी तरह जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक मिल्क है, आइसक्रीम है, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको टेम्परेचर कंट्रोल होना ज़रूरी है. इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी ओवरऑल स्वैब टेस्टिंग भी होती है, जिसमें देखा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन का ओवरऑल इन्वायरमेंट क्या इस काबिल है कि इस खास प्रोडक्ट को हम उसमें डिलीवर कर सकें. सो दीज इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड. आगे है मेजर्स टू प्रिवेंट और अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन. क्रॉस कंटेमिनेशन ये है कि कोई भी एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को कंटेमिनेट कर सकता है. फॉर एग्जांपल इसमें पर्सनस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. कोई एक मटेरियल, कोई टेबल, फॉर एग्जांपल कटिंग टेबल गंदा है तो वो दूसरे जो फूड मटेरियल इसको कंटेमिनेट कर सकता है. या इसके अलावा हमारा जो फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ वेसल्स हो सकती हैं इंडस्ट्री के अंदर, मुख्तलिफ पाइपिंग सिस्टम हो सकता है, अगर उनकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली दे कैन कंटेमिनेट आवर फूड प्रोडक्ट. तो इस नाज़र में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, मुख्तलिफ ऐसे मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड किया जा सके. इसमें एक तो ये है कि जो persons that are involved with production or processing practices, their hands should be uh, free from any sort of contamination, or they should be personally, uh, you know, you may say they should be personally very well, uh, mm, like they should be disease free, और उनकी कोई ऐसा इशू ना है जिससे वो फर्दर कंटामिनेशन को इंट्रोड्यूस करा सकें, या लाइक उनकी स्किन के ऊपर कोई ब्लिस्टर्स ना हो, कोई ऐसा कोई ऐसी कंटामिनेशन ना हो जो फर्दर वो प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस करा सकें. ये तो हो गया पर्सन इन्वॉल्व. इसके अलावा कुछ ऐसे असम्बलीज हो सकती हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे मटेरियल्स हो सकते हैं जो दूसरे मटेरियल्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो पर्सनल सॉरी क्रॉस कंटेमिनेशन का बायस बन सकते हैं. लाइक जैसे पानी है, पानी अगर पोर्टेबल क्वालिटी का नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्रॉस कंटेमिनेशन का इशू जनरेट हो सकता है. अगर स्टीम या एयर अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो वहाँ पे भी कंटेमिनेशन का इशू कंसर्न हो सकते हैं. इसके अलावा जो हमारे कटिंग टेबल्स हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हो रही है, उन स्टेजेस को भी मतलब कंटेमिनेट फ्री होना ज़रूरी है, उनकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना ज़रूरी है. लाइक उसमें फिजिकल कंटेमिनेशन भी हो सकती है, केमिकल कंटेमिनेशन भी हो सकती है, या बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन भी हो सकती है, जिसमें मुख्तलिफ लाइक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से कंटेमिनेशन हो सकती है. आगे क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन की बात आ रही है कि मुख्तलिफ जगहों को लाइक फ्लोर हैं, वॉल्स हैं, रूफ हैं, या अदर सर्फेस हैं, उनको क्लीन और सैनिटाइज करने के लिए भी ऐसे टूल इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं. तो अगर हम एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ISO 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो उसमें स्वैब टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें इन्वायरमेंट की जनरल
देखा जाता है कि माइक्रोबियल लोड कितना है इस इन्वायरमेंट के अंदर, या उसके अलावा क्लीनिंग का क्या मैकेनिज्म है, क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के एजेंट्स लाइक डिसइंफेक्टेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एसओपीज क्या है, या मुख्तलिफ सर्विसेज को सैनिटाइज कैसे किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। सैनिटाइजेशन में फर्दर जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन ये भी बड़ा ज़रूरी है आजकल, तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। हाउएवर इंडस्ट्री में तो इसकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी है, क्योंकि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हर तरह की कंटेमिनेशन को हमने अवॉइड करना है। ओके जी, यहाँ पे CIP की बात हो रही है, क्लीनिंग इन प्लेस। ये भी एक मैकेनिज्म है जिसके तहत हम क्लोज चैनल्स को साफ करते हैं। लाइक जूस इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, जहाँ पे मिल्क की प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ पे एक खास किस्म के केमिकल्स को इंट्रोड्यूस करवा के जो क्लोज वेसल्स हैं, क्लोज चैनल्स हैं, पाइपिंग सिस्टम है, उसको अंदर से साफ किया जाता है। तो ये भी एक CRP की रिक्वायरमेंट में आता है कि इस चैनल को, क्लोज वेसल्स को कैसे साफ करना है। उसमें जो CIP को मतलब देखा जाता है, लाइक उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स की रेशो सेट की जाती है, जिसमें नाइट्रिक एसिड है, कास्टिक सोडा है, हॉट वाटर के साथ उसको फिर ट्रीट किया जाता है सारे सिस्टम के अंदर इसको सर्कुलेट करके। ओके, उसके बाद बात आती है PRP में प्रिवेंटिंग एक्सेस। कोई भी प्रोडक्शन फैसिलिटी है वहाँ पे इजीली मतलब हर इरेलीवेंट पर्सन वहाँ पे उसकी एंट्री को अवॉइड करना है, उसकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो डोर्स हैं उनके ऊपर मेंशन किया जाए कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया और इरेलीवेंट पर्सन उनकी जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है, इस चीज़ को वहाँ पे मेंशन करना, ताकि जो भी इरेलीवेंट पर्सन है वो वहाँ पे एंटर ना हो सके, जो भी कंसर्न पर्सन है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो वहाँ से एंटर हो सकें। इसके अलावा दूसरा कंसेप्ट इसमें ये होता है कि लाइक जब हम पेस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक्सेस को प्रिवेंट करना है। मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जगहों से उस फैसिलिटी के अंदर आ सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। लाइक दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, उधर से एंटर हो सकते हैं, मतलब रोशनदान हैं, उधर से एंटर हो सकते हैं। तो दरवाज़ों के आगे मतलब कम से कम एक तो ये है कि एयर कर्टन होना ज़रूरी है, ताकि इंसेक्ट वहाँ से एंटर ना हो सकें, और जो दरवाज़ा है उसके नीचे जो स्पेस होती है उसको भी मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ताकि वहाँ से इंसेक्ट्स की एंट्री ना हो सके। ओके, इसके अलावा रोशनदान हो सकते हैं, एग्जास्ट हो सकते हैं, एग्जास्ट के अंदर से अक्सर लिजर्ड का जो है वो एंट्री होती है, या दरवाज़ा बार बार खुलता है तो वहाँ से मक्खी मच्छर वगैरह एंट्री हो सकते हैं। तो इस चीज़ को इस हवाले से कंसिडर करना ज़रूरी है। इसके अलावा प्रिवेंटिंग एक्सेस में जैसे पहले बात हुई है कि मुख्य ड्रेनेज ड्रेनेज और ड्रेन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से भी इंसेक्ट पेस्ट की एंट्री ना हो सके। मुख्तलिफ और वो जनरली इसमें देखा जाता है कि एक गैप एनालिसिस स्टडी की जाए जिसमें मुख्य चीज़ें सामने आएँ कि कौन कौन से ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं इंसेक्ट पेस्ट के लिए, या इवन दो फॉर ह्यूमंस और जनरल वर्कर्स, कि वो मतलब उस सिस्टम में, उस एरिया में एक्सेस हासिल ना कर सकें। उसके लिए गैप एनालिसिस देखा जाता है। गैप एनालिसिस में सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें उनको कंसिडर किया जाता है, जिनको फर्दर फिर गैप्स को कंट्रोल किया जाता है कि किस गैप को किस पर्पज़ के लिए कैसे कंट्रोल करना है। पर्सनल हाइजीन और एम्प्लॉय फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें जो भी पर्सन, जो भी लेबर इन्वॉल्व है प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, उनकी सेहत के जो मामला हैं उनको देखा जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है। एटलीस्ट जो पर्सन हैं वो दे शुड बी फिट फॉर परफॉर्मिंग दैट एक्शन। तो उसमें जो बुनियादी हेल्थ की, सेहत की रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो ये कि वो डिजीज़ फ्री होने चाहिए, उनको कि एड्स की, हेपेटाइटिस की, HIV का इशू ना हो, उनको कि उनकी स्किन के ऊपर कोई ब्लिस्टर्स, कोई छाले, कोई ऐसे एलर्जिक रिएक्शन ना हो जो उस प्रोडक्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व हैं। या इसके अलावा उनका जो पर्सनल गेटअप है वो इस तरीके से हो कि वो मतलब एक उनका पॉजिटिव बिहेवियर हो काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कानों में बालियाँ डाली हुई हैं, हाथ में बूटी हुई हैं, रिंग वगैरह डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से अवॉइड करना है। या उनका जो यूनिफॉर्म है
उनको देखना है कि यूनिफॉर्म शुड बी प्रॉपर ड्रेसअप हों, उनकी प्रॉपर जो लाइक उनकी शूज़ हैं, फुट कवरिंग है, वो प्रॉपर हो। उसके अलावा कोई घड़ी वगैरह ना पहनी हो, उनके प्रॉपर बाल बने हुए हों, ठीक है। शेव है, दाढ़ी वगैरह बड़ी ना हो, अगर दाढ़ी है भी तो उसके लिए तो बियर्ड मास्क यूज़ किए जाएँ या जनरल जो माउथ फेस मास्क है वो यूज़ किए जाएँ, ताकि किसी किस्म की क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो सके। लाइक ड्यूरिंग वर्किंग किसी वर्कर को अगर छींक आती है, खांसी आती है, तो वहाँ से क्रॉस कंटेमिनेशन का जो है ना हो सके। तो इस पर्पज़ के लिए उनकी फिर हेल्थ स्टेटस को भी देखा जाता है, उसका जनरल बिहेवियर भी देखा जाता है कि जनरल बिहेवियर कैसा है, उसका काम करने का तरीकाकार कैसा है, उसकी ट्रेनिंग्स कैसी हैं, उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है। हेल्थ स्टेटस की बात करें तो उसमें हर 6 माह के बाद उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी वर्कर काम पे आता है, काम पे रखने से पहले उसको, ड्यूटी पर रखने से पहले उसको मेडिकली स्क्रीन आउट करना है, उसके सारे एनालिसिस वगैरह करना, सॉरी उसके जो टेस्ट वगैरह करवाने हैं, ताकि जो भी कोई इस तरह का इशू है उसको वहाँ पे मतलब काम करने की इजाज़त ना दी जाए। तो उसके लिए उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है वर्कर का। ये इस अदारे की ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ पे वो फोकस करे। देन वर्किंग के लिए एक प्रॉपर गेटअप होना ज़रूरी है, जिसमें मास्क पहनना, हेयर नेट, बियर्ड नेट, उसका वाइज़र, उसका जो है यूनिफॉर्म प्रॉपर होना, उसके ग्लव्स प्रॉपर होना, उसको पहनने का तरीका आना चाहिए। इस चीज़ को किस मकसद के लिए पहनना है, इस चीज़ का उसको पता होना चाहिए। मीन्स टू से कि एक प्रॉपर गेटअप हो एम्प्लॉइज़ का काम करने के लिए। ओके, यहाँ पे ग्लव्स और ये शूज़ और यूनिफॉर्म दिखाया गया है। हर चीज़ का एक मकसद है, इसको उस मकसद के तहत यूज़ करना, पहनना भी ज़रूरी है। हेल्थ स्टेटस की भी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि इसकी मेडिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ओके, इलनेस और इंजरी ड्यूरिंग वर्क, अगर किसी एम्प्लॉइज़ के साथ कोई मतलब ऐसा इशू बन जाता है कि कोई कट लग गया, कोई इशू बन गया काम के दौरान, कोई बुखार हो गया, जुकाम नज़ला हो गया, तो ऐसी सूरत में कैसे उनके साथ डील करना है। एम्प्लॉइज़ को एक ये है कि आम मतलब नॉर्मल वे में उसको उस एरिया से या उस काम से छुट्टी देके किसी और काम पे उसको डिप्लॉय कर दिया जाए, अगर तो वो इशू हेल्थ इशू एक नॉर्मल नेचर का है, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप कंसिडर करते हैं, आपका जो सुपरवाइज़र है या जो मैनेजर इस चीज़ को देखता है कि इसको कुछ रेस्ट की ज़रूरत है एम्प्लॉय को, या कुछ अर्से के लिए उसको छुट्टी पे भेजने की ज़रूरत है, डेफिनेटली उसको फिर उस काम से मतलब हटा दिया जाए, ताकि वो पर्सन एक तो एफिशिएंटली जो काम परफॉर्म कर रहा है उसमें भी ऐसा इशू ना हो, ठीक है, वर्किंग एफिशिएंसी पे मतलब कि कंसर्न ना हो, या इसके अलावा वो दूसरा जो उसकी जो क्रॉस कंटेमिनेशन का वो इशू वहाँ पे जनरेट ना कर सके, ठीक है। उसमें देखा जाता है कि इम्प्लाई की वॉमिटिंग का इशू तो नहीं है, कोई फीवर का इशू तो नहीं है, उसको कोई डायरिया वगैरह का इशू तो नहीं है, जिससे वो फर्दर क्रॉस कंटेमिनेशन का बायस बन सकता है प्रोडक्ट के साथ या अदर एम्प्लॉयज़ के साथ। इन सारी चीज़ों को इस नज़र से देखा जाता है। देन पर्सनल क्लीनलीनेस की बात आती है कि पर्सनस को हाथ धोने का तरीका पता होना चाहिए, उनकी पर्सनल हाइजीन के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके नाखून भी बड़े होने चाहिए, कोई जल्द के ऊपर कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो, ठीक है। और इस तरह वो हाथों को धोने के बाद प्रॉपरली हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें कंसर्न्स हैं विद रेफरेंस टू सेफ्टी। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होना बड़ी ज़रूरी है, इसमें रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स भी आ जाती हैं, उसमें ड्यूरिंग वर्क ट्रेनिंग्स भी आ जाती हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स में कोई भी नया एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उसकी उस पैराए में ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। देन जो वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी भी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। मुख्तलिफ जो फूड सेफ्टी के मॉड्यूल्स हैं, मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं या उनके काम के हवाले से जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग है उनकी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। उसमें पर्सनल हाइजीन की ट्रेनिंग हो सकती है, जो एम्प्लॉइज़ को कैसे फर्दर जो जीएमपीज़ की गाइडलाइंस है उसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है।
ओके, इसके बाद बात आती है एम्प्लॉइज़ का पर्सनल बिहेवियर कैसा है काम के हवाले से। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें, एक चीज़ में इसको कंक्लूड करना चाहें तो the behavior of employees should be positive. अगर पॉजिटिव बिहेवियर होगा तो डेफिनेटली दे विल परफॉर्म इन अ बेटर वे। अगर बिहेवियर पॉजिटिव नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो काम के अंदर वो जो ना ऐसा फ्लॉज छोड़ेंगे जिससे कोई सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न जनरेट हो सकते हैं। लाइक अगर छुप छुपा के वो स्मोकिंग करते हैं तो ये भी एक नेगेटिव बिहेवियर है। रादर दैन के इंडस्ट्री में एक ऐसा सेटअप मौजूद हो, उनको स्मोकिंग अगर कोई करना चाहे तो वो स्पेसिफिक स्मोकिंग एरिया में जाके स्मोकिंग कर सकता है, ठीक है। या पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हैं एम्प्लॉयज़ की, उनको रखने के लिए स्पेस दी जाए, कोई ड्रॉर वगैरह कोई कबर्ड वगैरह दिया जाए ताकि वो अपनी पर्सनल बिलोंगिंग को वहाँ पे समेट सकें। रादर दैन के वो अंगूठी उतार के बजाय कहीं रखने के वो छुपा के अपनी पॉकेट में अंदर ले जाए, अंदर से वहाँ से कहीं ना कहीं वो किसी प्रोडक्ट के अंदर गिर जाए, तो दैट शुड बी अ सेफ्टी कंसर्न एंड इट शुड बी दैट अकॉर्डिंगली। ओके, यहाँ तक हमने पीआरपी की बात की है, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। इसके अलावा कुछ ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स हैं जो उस स्पेसिफिक टास्क, उस स्पेसिफिक वर्क से रिलेटेड डील करते हैं, उनको भी हम यहाँ पे विद स्पेसिफिक केस स्टडी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओपीआरपी प्रोग्राम वेरी विद रिस्पेक्ट टू फूड सच एज डेयरी इंडस्ट्री हैव डिफरेंट ओपीआरपी दैन चिप्स इंडस्ट्री। मतलब ये क्या है, काम से स्पेसिफिक हैं और इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं और ऑपरेशन स्पेसिफिक हैं, तो इनको हम उसी वाले से कंसिडर करते हैं। तो इनमें बेसिकली चार फैक्टर्स हैं ओपीआरपीज में, लाइक प्रोसेस कंट्रोल से रिलेटेड, हैजर्ड कंट्रोल से रिलेटेड, इसमें फिर फर्दर क्रिटिकल लिमिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, देन इनकी मॉनिटरिंग। तो ओपीआरपीज बेसिकली ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, कोई भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन, उसमें जो भी हम पीआरपी को मद्देनजर रखते हैं उसको हम ओपीआरपीज कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के साथ बात करेंगे। आइसक्रीम प्रोडक्शन के अंदर पीआरपी और ओपीआरपी का कंसेप्ट क्या है। लाइक एक साइड पे मुख्तलिफ प्रोसेस लेवल्स मेंशन हैं, हैजर्ड्स हैं, उनका कंट्रोल है और ओरिएंटेशन है। हम इस एग्जांपल के साथ को देखेंगे कि आइसक्रीम प्रोडक्शन के लिए सबसे पहली स्टेज है प्रोसेस लेवल की मिक्सिंग ऑफ एडिटिव्स इंक्लूडिंग स्किम मिल्क, पाउडर, ऑयल ऑफ मिल्क एंड शुगर। मतलब डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स उनको मिक्सअप किया जाता है, मतलब एक रेसिपी मिक्सिंग की जाती है, रेसिपी फार्मूलेशन है। इस स्टेज पे मुख्तलिफ पीआरपीज और ओपीआरपीज को कंसिडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम हैसप के हवाले से देखें तो इसमें सबसे पहले सीसीपीज को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लाइक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को हम एक ओवरऑल एक जनरलाइज्ड सिनारियो में देखते हैं, लेकिन जब हम इसको टू द पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं तो देन हम इसमें पीआरपीज और ओपीआरपीज की डिस्टिंक्शन करते हैं। तो अगर हम पीआरपीज और ओपीआरपीज को बात करें तो उसमें कंट्रोल पॉइंट क्या हो सकता है, दी कंप्लायंस ऑफ एडिटिव्स विद स्पेसिफिकेशन। लाइक आइसक्रीम फार्मूलेशन, जो रेसिपी फार्मूलेशन है उसमें जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, अदर देन दीज भी हो सकते हैं। हाउएवर उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कंप्लायंस विद एडिटिव स्पेसिफिकेशन। लाइक कंप्लायंस कैसे कि जो एडिटिव हम यूज़ कर रहे हैं वो एडिटिव शुड बी फ्रेश, वो एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए। लाइक आइसक्रीम में अगर कलर यूज़ हो रहा है, अगर कोई फ्लेवर यूज़ हो रहा है, अगर कोई स्वीटनर यूज़ हो रहा है, शुगर यूज़ हो रही है, मिल्क यूज़ हो रहा है, स्किम मिल्क यूज़ हो रहा है, ऑयल यूज़ हो रहा है, या पाउडर्ड मिल्क यूज़ हो रहा है, व्हाट्स एवर एनी इंग्रेडिएंट, सभी की कंप्लायंस देखनी है हमने। उसकी जो एडिटिव की स्पेसिफिकेशन है कि वो प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एक ऑथोराइज ऑथेंटिकेटेड सप्लायर से परचेज किया गया हो। या इसके अलावा जो अदर पैरामीटर्स हैं जो भी पीछे डिस्कस हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ना इंग्रेडिएंट्स की कंप्लायंस देखनी है। ओरिएंटेशन में क्या है, प्रोवाइडिंग यूजेज ऑफ अप्रोप्रिएट क्वालिटी एडिटिव। सो कंट्रोल यहाँ पे हम मतलब लगा सकते हैं प्रोसेस लेवल पे जहाँ पे रेसिपी को मिक्स करना है
और उसको कैसे हम फर्दर कंसिडर कर सकते हैं, उसको ओरिएंटेशन में डिस्कस किया गया है। देन अगला प्रोसेस लेवल 2 है जी पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में हैजर्ड क्या हो सकता है? फेलियर ऑफ पास्चराइजेशन काजिंग लाइव पैथोजेंस। अगर यहाँ पे पास्चराइजेशन एफिशिएंसी की बात की जाए तो यहाँ पे भी एक प्री रिक्विजिट और सॉरी यहाँ पे एक ओपीआरटी को हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिकली डिस्कस्ड विद द पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, अब फॉर एग्जांपल पास्चराइजेशन एफिशिएंटली नहीं हुई, परफॉर्म नहीं हुई, तो वहाँ पे हम क्या है, एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम पास्चराइजेशन एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, या एक इक्विपमेंट है, या एक जो हैंडी इक्विपमेंट है जिसको हम पास लाइट बोलते हैं, एक मशीन है जिसके थ्रू हम सैम्पलिंग एनालिसिस करके उसकी हम पास्चराइजेशन एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपीआरटी ये है कि हम पास्चराइजेशन की एफिशिएंसी को चेक करेंगे, उसका चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेंगे कि डेफिनेटली पास्चराइजेशन प्रॉपर्ली हुई है या नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, द कंट्रोल ऑफ पास्चराइजेशन इफेक्टिवनेस। ओके, और इसकी ओरिएंटेशन कैसे होगी? इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड क्या है? जो भी सिस्टम के अंदर हम मतलब एज आ ओ पी आर पी इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो एक एज आ स्टैंडर्ड होगा। उस स्टैंडर्ड मेथड से, उस रेफरेंस से हम पास्चराइजेशन की एफिशिएंसी को चेक करेंगे। देन होमोजेनाइजिंग की स्टेज पे क्या है? इन्फेक्शन आफ्टर पास्चराइजेशन हो सकती है। इसका कंट्रोल क्या है? एडिक्वेसी ऑफ इम्प्लीमेंटेड क्लीनिंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या है, पीआरपी को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में क्लीनिंग प्रोग्राम के साथ डील करती है। ओरिएंटेशन इसकी क्या है? प्रोवाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडिक्वेट क्लीन अप प्रोग्राम्स। अब ये क्लीन अप प्रोग्राम क्या है? इक्विपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, या जहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रही है उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेज पे क्या है? कूलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मिक्सचर इन दी रेफ्रिजरेटर, देन फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम। अब यहाँ पे जो है क्या है, हैजर्ड क्या हो सकता है? माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और ये क्या है? ओ पी आर पी बनेगा जो कि प्रोसेस कंट्रोल से रिलेटेड है। मीन्स कि प्रोसेस कंट्रोल में टेम्परेचर कंट्रोल का एक फैक्टर है, उसको हम ऑपरेशन के हवाले से देखेंगे। तो देन फर्दर क्या है, ओरिएंटेशन में इसके आ जाता है, कंट्रोल पॉइंट में इसका आ जाता है प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट टेम्परेचर कंडीशंस। ठीक है, देन प्रोसेस लेवल है पैकेजिंग, हार्डनिंग एंड स्टोरेज। यहाँ पे भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है, सब्जेक्ट टू दी पैकिंग इक्विपमेंट्स और पैकिंग मटेरियल। तो इससे रिलेटेड अगर हम इसकी ओरिएंटेशन देखें तो यहाँ पे क्या, पैकिंग मटेरियल शुड बी स्टोर्ड इन गुड हाइजेनिक कंडीशन। यहाँ पे क्या है, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम पी आर पी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। तो क्योंकि ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न है जिसको हम पीआरपी में डिस्कस करते हैं, लाइक जो पैकिंग मटेरियल हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसकी स्टोरेज कैसी थी, उसको परचेज जो किया, साफ सुथरा पैकिंग मटेरियल था, फूड ग्रेड पैकिंग मटेरियल था। ठीक है, उसके सफाई और हाइजीन से रिलेटेड कंसर्न यहाँ पे हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको प्री रिक्विजिट प्रोग्राम में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी आज की ट्रेनिंग एंड होती है। जस्ट कंक्लूजन इज दैट कि हम स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते हुए पीआरपी के ऊपर फूड सेफ्टी, इसकी सैनिटेशन, इसकी वर्क स्पेस डिज़ाइन, इसकी जो भी रेलेवेंट फैसिलिटीज़ हैं या जिस विसिनिटी में वो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हो रही है, इन सभी फैक्टर्स को हम कंट्रोल करके एक स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस मेंटेन करके पीआरपी के ऊपर हम हैसब को इम्प्रूव सेंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So that is a conclusion, or you may consider it uh, today's message regarding this training. So we have completed our training right now.